and let me record this session, and I'm going to give you the task which actually is being asked in the HPCL. And let me tell you, on the basis of the feedback which I'm getting from the students going for GT, they're eliminating those students also who are speaking a lot. So speaking is not a criteria. Speaking a lot is not the reason for elimination, but if you speak irrelevant, then obviously they will eliminate you. Group task is all about thinking and providing the creative solution. So as you must have seen, group task may he will give you a riddle, he will give you a topic, and you have to provide a very innovative solution to that. So if you keep on speaking something which does not make sense, they will eliminate you. They're not bothered about how much you spoke. They're only bothered about how effective you are talking, how creative you are in providing your solutions. So for that, what you can do is like previous जो years का HPCL का है, वो सारे GT को ढंग से कर लो, that do it well. And not only that, there are 300 group tasks available on the panel of Europedia. So every task you will get something new. I mean, this is how you have to think. That particular thinking needs to be developed. Otherwise, you may not get a solution. This task is similar to that. You will see that you will not develop consensus easily in this particular task also, and everybody will be thinking, in a different way, and it will be very very difficult to hit the right answer. Why? Because the choices are so close. It is like you love your mama more or your papa more, something like that. So वो task दे रहा है और उसमें तुम्हें solution देना है, and he is not interested. If I ask you, you love your mama more or papa more, you will say mama. I'll ask you why, and the reason is important, not that you gave mama or papa. I'm not interested in that. I'm interested why you said that. So similar to that, this task is there. Let me bring this task to your screen, and you will understand what I mean to say. So there are, some G8 meeting is going on. Group of eight leaders are meeting in United Nations, and we are discussing about some topics. So there are a couple of topics they have given, 5 topics: food, water, climate change, pollution, peace, security, violence against women. You have to prioritize which one is the most important, followed by next. And I don't want only list, I want the reason why you said that. So that is something which is important. Give yourself a couple of minutes and then we start. Food.
Okay, so I think you have already gone through now this, right? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. let me now initiate it. Unmute each one of you, unmute yourself. And as I told you, the most important thing is like you need to give relevant point, not talking a lot, but relevant point, which at the end you will identify the way I give you the solution. You will identify that, this is how I am to speak. So if you do something like that, you will be in. So give very relevant. So Anish, please unmute yourself and start your discussion now. Good evening, everyone. I am Today Sachin we Kumar. have- I am glad to start the GD today. And the GD given today is about we are a team of 8 political leaders, and we have to prioritize the things in accordingly. तो जो जो चीजें दी हुई हैं, जो प्रायोरिटाइज करनी है, इसमें हमारा जो है वो फूड है, वाटर है, पीस एंड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन एंड द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इन सब में जो है हमें प्रायोरिटाइज करनी है चीजों को। तो इन माय अकॉर्डिंग टू मी थिंग्स शुड बी रिमाइंडर दैट कि सबसे पहले हमारा जो लाइफ है, तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए कौन सी चीजें जरूरत हैं, उसके अनुसार जाएंगे। देन फिर उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी आती है, उसके बाद हमारा फिर क्लाइमेट आता है, फिर ह्यूमन की रेस्पेक्ट एंड समथिंग आती है। तो मुझे ख्याल से इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड करना चाहिए। हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होना चाहिए वो हमारा सर्वाइवल होना चाहिए और हेल्थ होना चाहिए। इन माय मुझे लगता है I think we can prioritize the issues based on 2 points. पहले we should First point can be prioritize what impact Sachin, it will I have am on the agree survival. with you. First of all, हमें बेसिस पे टैकल सर्वाइवल करना के है लिए क्या नेसेसरी है वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए हमें क्या लाइक टैकल करना वाटर है। एंड लाइक फूड। फूड सबसे उसके बाद ज्यादा हमें इम्पोर्टेंट है। सेफ्टी की हमें तरफ सबसे आना पहले चाहिए फूड, और फिर हमें क्या वाटर एंड आना चाहिए, पीस क्लाइमेट एंड चेंज के सिक्योरिटी लिए को आना चाहिए। एक उस पे इमीडिएट बेसिस पे देखना पड़ेगा। और जो हमारे लॉन्ग टर्म बेसिस हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जो इसका सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म पे निकलेगा, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि एनवायरमेंट वाला पॉइंट एंड वायलेंस वाला point, इसको हम लॉन्ग सही टर्म कहा के हरमीत, अभी पाकिस्तान की हम सिचुएशन देख रहे हैं, वहाँ फूड की किल्लत है, तो उस कारण वह सिक्योरिटी का इशू भी रेज हुआ है। अगर हम फूड का इशू पहले सॉल्व करते हैं तो पीस और वायलेंस का प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। See, Aniket, हम लोग अभी पहली बात GT क्या आती है, बैठे हुए हैं। सबसे big issue है, those five issues, how do we address the importance of that particular issue? सबसे पहले देखना पड़ेगा हमें कि उस इशू के बिना अगर वो इशू सॉल्व नहीं होता है तो लाइफ पॉसिबल है कि नहीं। Based on that we need to decide the criticality of particular issue. मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा। For example, अगर पानी को देखें हम, can we imagine that without water life can be possible? अगर पानी Yes, की I am agree how with you, can Sudhankar. Yeah, I am agree. First we अभी जो रशिया यूक्रेन वाला जो सिनेरियो चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी इश्यूज जो भी बाकी की चीजें फूड और वाटर का जो ग्रेन शॉर्टेज वगैरह है उसका इफेक्ट हुआ है। सो मे बी हमें ऐसा पहला फैक्टर लेना चाहिए जो बाकी फैक्टर्स को भी अफेक्ट करेगा। सो आई थिंक वी शुड टेक फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द पीस एंड सिक्योरिटी। अगर वो
पहले सही सलामत रहता है, but if the external thing is okay, then we can prioritize the internal things. लेकिन वो मेरा कहना है अनुज, अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं अफ्रीका का, तो अफ्रीका पे वहाँ पर prioritize जो करना हम पड़ेगा। सिक्योरिटी मैटर नहीं करते जैसे हो कि आप जाएगा, सब जानते जैसे हैं कि कि वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का अफ्रीका टाइम कंट्रीज है, है, सारी वहाँ पे कंट्रीज आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, तो अगर पीस एंड दे सकते सिक्योरिटी हैं। नहीं होती है तो जो ट्रेड के जो रूट हैं वो भी बाधित होते हैं अगर पीस एंड सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, सारी कंट्रीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो Correct, रशिया वर्ल्ड के 30 to 40% फर्टिलाइजर का एक्सपोर्टर है, वो एक्सपोर्ट करता है। अगर वॉर चल रहा है तो उसके कारण फर्टिलाइजर की सप्लाई इंटरप्ट हुई, जिसके कारण फूड पे भी, जो गरीब कंट्री है उसका फूड पे फर्क पड़ेगा। जब फूड पे फर्क पड़ेगा तो मुझे लगता है कि उसके लिए फिर वो ओल्ड टेक्निक यूज करेंगे, तो उसके लिए हमारा वाटर की कमी भी हमको होने लगेगी। तो हमें आई थिंक सबसे पहले अर्पित का बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है अफ्रीका कि के जो कंट्रीज पीस को एंड दे सकता सिक्योरिटी हूँ, जो है, उसके लिए हमें कंडीशंस को पहले क्लाइमेट वाला हम लोग for the Guys, water security. climate change है। लेडीज से हम लोग अफ्रीका एक कंट्री किसी से सर्वाइव कर रही है, वहाँ पे सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन है, सबसे ज्यादा बीमारियां और बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्योर वाटर देयर। अफ्रीका का भी एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी हम और पीस एंड पर्पस नहीं सिक्योरिटी है की बात कर रहे हैं। पीस एंड सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट, बट पीस एंड सिक्योरिटी बाय प्रोडक्ट है। अगर कंट्री में Yes, वाटर yes, क्राइसिस समझ आएगा, गया। ऑटोमेटिकली पीस एंड सिक्योरिटी पर थ्रेट होगा। देखो मुझे लगता है कि क्लाइमेट, देखो देखो सुनिए पीने के लिए पानी नहीं है तो फिर पीस और भाई, सिक्योरिटी का कोई यूज आई नहीं है थिंक ना। बेसिक रीजन पे सही फोकस कहा करेंगे, राकेश। उसके सही रिजल्ट कहा, अपने जैसे कि जाएंगे। अफ्रीका फॉर एग्जांपल एग्जांपल, ले सकते हैं ना, अफ्रीका अगर हम बहुत सारी वाटर में कंट्रीज सफिशिएंट है, सर्वाइव अगर हम वहाँ फूड पे में सफर सफिशिएंट कर है, रही तो है पीस बिकॉज एंड ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड कंट्री में सिक्योरिटी। डेवलप होने का चांस अच्छा है। यस, नहीं, फूड एंड अभी सिक्योरिटी अभी हम देख क्या सकते है, हैं सिक्योरिटी को कि हमें अगर पहला फूड नहीं होगा सबसे ये पहले देना माल पड़ेगा, फूड न्यूट्रिशन एंड होगा। वाटर को पहली इसका प्रायोरिटी फूड एंड देनी वाटर पड़ेगी। को सर्टेनली पहले लेना पड़ेगा। यस यस सो तो हम देख वही सकते हैं कॉज कि है हमारा बाकी जो सब कंट्री है रीजंस का। नरेंद्र मोदी जी, सो उन्होंने तभी डिसाइड आइडिया किया है कि कि हमें ईयर ऑफ फर्स्ट मिलेट्स, प्रायोरिटी वाटर को देनी चाहिए। ईयर ऑफ मिलेट्स जो नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया, ईयर ऑफ मिलेट्स कि फॉर द इंटरनेशनल लेवल पे इसको प्रमोट करना चाहिए, और इसीलिए किया जाना चाहिए क्योंकि जो मिलेट्स है वो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, उसमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, और मोटा अनाज भी होता है, न्यूट्रिशियस भी होता है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि प्रायोरिटीज हमारे जो है ईयर ऑफ मिलेट्स जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो यहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं कि फूड हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वाटर आता है। आपका फूड और पानी का मैं ये तो कहूंगा कि हम वाटर ये ऐड बोथ करना एसेंशियल। मैं ये कहूंगा कि हम नहीं बोल सकते कि फूड इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है। हो सकता हो फूड की प्रॉब्लम पूरे दुनिया में हो, तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा इस प्रॉब्लम का इम्पैक्ट कितने पार्ट में पड़ रहा है। हो सकता हो 10% ऑफ वर्ल्ड, हो सकता हो पानी की दिक्कत पूरे वर्ल्ड में हो, तो सबसे पहले तो हमको फिर पानी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ना। हमको ये देखना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट। सबसे पहले तो हम 5 कमेटी बना लेंगे। 5 कमेटी बनाएंगे, सबको ये बताएंगे इम्पैक्ट असेसमेंट बताओ सब में कितना कितना हो रहा है। जैसे कि हो सकता है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सिर्फ एक 0.001% हो, तो हमारे लिए वो प्रायोरिटाइज का हिस्सा रहेगा। सबसे पहले इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे कौन से हिस्से में कितना इम्पैक्ट हो रहा है। जब इम्पैक्ट असेसमेंट हो जाएगा तो इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद जैसे कि हमारे पास आया कि फूड सबसे ज्यादा दिक्कत, तो ऑब्वियसली फूड से कोई इंसान नहीं मरना चाहिए। अभी हमने देख लिया, जैसे सिक्योरिटी वाली बात आती है, तो अभी हमने देख लिया कि रशिया और यूक्रेन वॉर में था, तब भी दुनिया चल रही थी, अभी भी दुनिया चल रही है। ये बात नहीं है, जो वर्ल्ड है खाने के उससे नहीं देख सकते। अगर कहीं पे भुखमरी है तो सबसे पहले वो बेसिक होगा, फिर उसके बाद हम सिक्योरिटी की बात करते हैं। वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज का असेसमेंट लेना पड़ेगा। सिक्योरिटी कंट्रीज की प्रॉब्लम से गुजर रही है, उसका असेसमेंट लेके प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। हमें सब कंट्रीज को सोचना चाहिए। सब कंट्रीज को ये सोचना चाहिए which is important to all the nations which are presented in the United Nations. Correct. In addition to that, if you consider the sustainable development goals, this is what sustainable. Let me complete. In the sustainable development goal was designed
two bases of 20 points. And in the first point, we can consider it as a zero hunger. It is a sustainable goal, development goal also. So in my opinion, we can consider it as a hunger problem at first, because Yes, it is a worldwide problem, and as a united Yes, parts, yes, we yes. have to consider I agree. I all agree the with countries I agree. I agree with Nikhilesh. I agree with यहाँ पे Nikhilesh that food is a big डाटा problem, का but यहाँ पे food हम and डाटा water का needs एग्जांपल to ले be सकते हैं food and water can be cured with the help of climate change. We first अगर prioritize हमें थोड़ा water, रिस्क पानी का मैट्रिक्स प्रॉब्लम बनाना ठीक करना है, तो उसके लिए हमें we क्लाइमेट consider चेंज the के लिए देखना पड़ेगा, बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से ही यहाँ भारत पे में हम खाने के डाटा का इस्तेमाल कर सकते जैसे हैं कि हम कि जो पाकिस्तान का अगर केस देखते बिकॉज हैं, ऑफ द लैक ऑफ द फूड एंड वाटर कितने लोगों की डेथ हो रही है। अगर इस चीज को अगर डाटा का बेसिस एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा कि फूड से सब फूड और जो वाटर के लैक से जो है बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं और उस चलते डेथ बहुत ज्यादा होती है। तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो फूड एंड वाटर के लैक के कारण सबसे ज्यादा है। तो पानी की मेरे कमी ख्याल से से इसको खास करके डाटा में अफ्रीकन रखना कंट्रीज में चाहिए। सचिन वो रेट ज्यादा है। फूड और वाटर अफ्रीकन कंट्री फूड फूड और अफ्रीकन और पानी कंट्री का जो when दिक्कत है you see the वो तो data in हमारे the African क्लाइमेट चेंज countries, की they are वजह से suffering ही हो रहा है। because of अगर the हम lack of the क्लाइमेट को food and प्रायोरिटाइज water. नहीं करते हैं तो हम बराबर पानी गौरव और खाना जो है उसको I उगा agree नहीं with पाएंगे। Gaurav. I subsidiary agree with Gaurav. line also with our prime minister, previous prime minister, roti kapda makan. Roti means food. So हमको सबसे पहले prioritize ही food और water करना पड़ेगा इन impact को कि इनका कितना part But every झेल country रहा is है। not poor country, अगर no. अगर उसके Many बाद में countries जब are also पीस और developed सिक्योरिटी की countries. बात, अगर इसमें दुनिया में जैसे वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो ऑब्वियसली अगर यूएन एक पार्ट है वर्ल्ड वॉर में, तो बहुत सारी कंट्रीज इफेक्ट होती है ना, कोई ऐसी दो छोटी कंट्रीज थोड़ी हैं। तो हमको फिर उसके बाद पीस एंड सिक्योरिटी लाना पड़ेगा कि ये वर्ल्ड वॉर रुके, क्योंकि थर्ड पॉइंट पे थर्ड उसके बाद थर्ड प्रायोरिटाइज अपन पीस और सिक्योरिटी कर सकते हैं कि अगर वो पहला I think third में आएगा climate change। क्यों बता रहा हूँ? क्लाइमेट चेंज सबसे पहले climate प्रायोरिटाइज change is a करना पड़ेगा। long देखिए term देखिए climate change, I क्लाइमेट think चेंज हमें climate change is a प्रायोरिटाइज long करना term पड़ेगा। long अगर term क्लाइमेट चेंज Developed होगा countries तो में climate change एक दिन में नहीं पानी होता का है। जो Any दिक्कत condition, climate अभी change को देखिए control जो करता है। जो let me tell you, climate soil change का जो एक दिन climate में नहीं change होता है। तो food और water उसका automatically solution control हो जो सकता है ना। करना चाहते हैं ना वो एक दिन में नहीं होता है। अगर सॉइल नहीं उसकी रहेगा तो हम प्रोसेस भी बहुत टाइम आप लेती है अफ्रीका के एग्जांपल क्लाइमेट चेंज को सुधारने के प्रेडिक्ट कर लिया है कि अगले 40 साल में बहुत शायद टाइम बाद में फर्टिलिटी खाना नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ फूड और फाइव फर्टिलाइजर। करके तो मुझे डेवलप लगता है कि हम हमें अभी तक क्लाइमेट को प्रायोरिटाइज ही नहीं कर फोकस पा रहे करना थे। पड़ेगा अगर हमें खाना और पानी का दिक्कत सॉल्व करना है तो। और देखिए अगर क्लाइमेट का पानी क्या और दिक्कत है ना कि फूड और इंडिया ने वाटर क्या का जो बोला, भी इंडिया ने बोला है कि 2070 तक ही जीरो कार्बन ला पाएंगे और अदर कंट्री बोला नहीं आपको 2050 तक लाना पड़ेगा। तो इंडिया के एग्जांपल देखकर समझ सकते हैं कि डेवलप जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लाइमेट बहुत चेंज जरूरी जो है। होता है We ना can वो लॉन्ग compromise टर्म with प्रोसेस climate होता है। with ऐसा time. नहीं है कि Okay. कल नहीं, हमने आग शशांक। जलाई तो आज पूरा पोल्यूशन हो वही चीज गया। मैं लॉन्ग आपने टर्म अभी प्रोसेस है, एग्जांपल देखा इम्पैक्ट भी क्या हुआ? लॉन्ग टर्म और इसका सॉल्यूशन भी लॉन्ग टर्म अभी रहता है। पाकिस्तान में क्या हुआ, भारत के लेकिन आसाम अगर केरला इसमें देखते क्या हैं हो कि रहा है, जब बाढ़ आ रही है। इसमें दैट्स इज थ्रेट फॉर सर्वाइवल। सो क्लाइमेट को थर्ड पे रखना इसलिए जरूरी है कि अगर क्लाइमेट और चेंज अगर एब्रप्ट कंडीशंस आती है नेचर की तो उससे पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ नेशन इज हैम्पर्ड। सो क्लाइमेट चेंज इज इटसेल्फ इज अ cause for the threat to नो the peace and security. शुभंकर वाटर सिक्योरिटी इज द करेंट पर्पस। पहले अपना इकोसिस्टम सेफ करेंगे तो हम अपने आप को सेफ कर पाएंगे। ऐसे ही बचेगा हम क्या देख पाएंगे, है ना? क्लाइमेट चेंज आप कंट्रोल कर सकते हैं क्या? एक सेकंड क्लाइमेट चेंज आप कंट्रोल कर सकते हैं क्या? आप नहीं कर सकते। बिल्कुल आप कर लेकिन सकते हैं बिल्कुल climate जरूर change कंट्रोल कर सकते control। हो। जब क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल नहीं करना है। क्लाइमेट चेंज हम नहीं कंट्रोल कर सकते, हम उस बस टाइम पे उसके रिगार्ड स्टेप्स ले सकते हैं कि वो क्लाइमेट कैसे चेंज को कम हो। कंट्रोल लेकिन हम नहीं करना, क्लाइमेट बट व्हाट चेंज एक ओडिशा हैज डन, दिन लेकिन पीस एंड सिक्योरिटी ना पीस एंड सिक्योरिटी एक स्टेप में ही हम रोक सकते हैं, हम कर सकते कंट्रोल हुआ और टेररिज्म कंट्रोल हो गया इतने सालों से। कैसे कंट्रोल कर रहे हो? फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज की अगर बात कर रहे हैं तो ओडिशा गवर्नमेंट ने एक एग्जांपल बताया है कि फॉर एग्जांपल साइक्लोन से सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है ओडिशा स्टेट, बट इंडिया हैज डेवलप्ड अ मैकेनिज्म दैट सबसे पहले पता चलेगा उनको कि साइक्लोन कहां पे आ रहा है, उसकी प्रोटेक्शन कैसे की जाए। So such kind of mechanisms must be promoted, and hence climate change is a very important issue. Yes, I agree with you. Climate change हमें very important point रखना पड़ेगा। If you look at Pakistan, Climate change is an अपने लाइफ important के issue, लिए but अगर not हमारी लाइफ greater नहीं than रहेगा तो peace and हम security. ज्यादा खराब हमें हो जो 5 इशू दिया है हम वो जहाँ पे क्लाइमेट रोज चेंज कर देते ध्यान नहीं देंगे तो वॉर थे जो जैसे ऑलरेडी डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे उन पे वर्ल्ड बहुत वार हो ज्यादा रही है मार तो पड़ेगा वहां अगर हम दिन क्लाइमेट पे ध्यान नहीं देते हैं। क्लाइमेट ही रीजन है कि हमें पानी की किल्लत हो रही है, क्लाइमेट ही रीजन है कि हमारे पास खाने का दिक्कत हो रहा है, और खाना और पानी एक इतना बड़ा दिक्कत है जिस वजह से सिक्योरिटी इश्यूज होती है। क्योंकि जब देश के पास खाना नहीं होता है, अगर आप अफ्रीका जाएंगे वहां पे खाने को उनके पास कुछ नहीं है, इस वजह से सोमालियन पायरेट्स हर बार
अफ्रीका के पास जो भी ट्रेड रूट है वहां पे वो लोग पायरेसी करते हैं, अटैक करते हैं। अगर उनके पास खाने का ये दिक्कत नहीं होता तो उन्हें पायरेसी करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से आई बिलीव क्लाइमेट चेंज इज वेरी बिग इशू। इफ क्लाइमेट चेंज को अगर हम ठीक नहीं करते हैं तो बाकी कुछ ठीक नहीं होगा। और क्लाइमेट चेंज करना बहुत आसान है। अगर कोविड का क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम Climate change is important, जैसा गौरव ने कहा, certainly important, and we are putting it on the third. क्लाइमेट चेंज को मैं मानता हूँ क्लाइमेट चेंज का इशू बहुत बड़ा इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बट मेरा ये कहना है कि हम वन डे स्टेप, वन डिसीजन में, एक डिसीजन से सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं होगी ना, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। एक डिसीजन से फूड और वाटर की सिक्योरिटी वो हो सकती है, जैसे कहीं पे फूड और वाटर की सिक्योरिटी हमने फर्स्ट और सेकंड पे रखा है ना उसको, और हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। हम थर्ड की बात कर रहे हैं, चलो मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ। ओके अगर एक बात बताइए, जो वॉर्स होते हैं वो रुकते कैसे हैं? वो ट्रीटीज के थ्रू रुकते हैं, ट्रीटीज के थ्रू रुकते हैं, कोई ना कोई बीच का आता है। अभी मैं कह रहा हूँ कि वॉर रुकेगी, वॉर ये भी एक सिंगल स्टेप डिसीजन है ना, वन डे डिसीजन है ना। अगर ट्रीटी करवा एक साल से लड़ रहे हैं, हमें सबसे पहले लाइक जैसे शशांक ने एकदम सही पॉइंट बोला कि हम चल रहा है, दिन में 10,000 लोग मर रहे हैं, और आप एक बात बताइए कि वहां बहुत बारिश हो रही कहीं पे, 10,000 लोग तो नहीं मरेंगे ना। मैं नहीं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नॉट ग्रेटर देन पीस एंड सिक्योरिटी। हम ट्रीटीज करा के जब कोई निर्णय लिया जाता है ना तो वर्ल्ड वॉर नहीं लिया जाएगा। नॉर्मल बात में ये भी है कि अगर किसी कंट्री में वर्ल्ड वॉर चल रहा है या कोई कंट्री इन्वॉल्व है वॉर में, लिया जाता है, रेगुलेशन बनाएंगे तो उसमें वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी कंट्री में ऑलरेडी वॉर चल रही है, तो इसीलिए इमीडिएट बेसिस पे हमें सब थर्ड प्रायोरिटी पे वॉर को रखना चाहिए, क्योंकि अगर वॉर जब तक फिनिश नहीं होगा तो कोई कंट्री, अगर हमने मान लीजिए, चलिए हमने आपकी बात मानी कि एनवायरनमेंट को हमने थर्ड प्रायोरिटी दे दी, लेकिन अगर वॉर पहले से चल रहा है तो वो जो कंट्रीज वॉर में इन्वॉल्व है वो कैसे हमारे जो नियम है उसको फॉलो करा पाएंगे? ये फॉलो करेंगे? एक सेकंड, लेट मी स्पीक। यूएन का रिकॉर्ड रहा है कि यूएन में असेंबली में, जनरल असेंबली में सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन ना सिर्फ पीस और सिक्योरिटी के नाम पे ही है, नॉट द क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब ये है कि पीस और सिक्योरिटी ज्यादा वो है एज कम। मैं कह रहा हूँ क्लाइमेट चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सीरियस इशू है, बट नॉट ग्रेटर देन दी पीस एंड सिक्योरिटी। पीस एंड सिक्योरिटी हम सिर्फ एक स्टेप में भी रोक सकते हैं ट्रीटीज करा के, लेकिन क्लाइमेट चेंज लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। हमें पता चला कि हमारी जो ओजोन है वो रिकवर हुआ। ये सब अमेंडमेंट्स इसलिए तो हो रहे हैं, और इनके टारगेट्स होते हैं 20-20, 25-25 साल के। अगर कोई टारगेट है तो हम बस उसको रिव्यू करते हैं, लेकिन कहीं पे लड़ाई चल रही है तो वो हमको एटमोस्ट तुरंत देखना होता है। क्या कर सकते हैं? एक बार एक ऑर्डर बता देता हूं, अगर आप सहमत है नहीं है आप How many countries are the ones मैं एक बार एक ऑर्डर बता देता हूं, and how many countries are the one which suffers natural calamities? किसका प्रमाण ज्यादा है? नेचुरल कैलामिटीज झेलने का प्रमाण ज्यादा है, ये वॉर में इन्वॉल्वमेंट का प्रमाण ज्यादा है? आप बताइए किसकी क्रिटिकलिटी ज्यादा है? शुभंकर, एक बार मैं समराइज करता हूँ। अभी हमें एक कंक्लूजन पे आना है। हमें अभी एक कैलेमिटीज को आप रोकेंगे, सारे मेंबर्स एक बार सुन लीजिए, कंक्लूजन पे आना है। मैं उस कंक्लूजन का एक ऑर्डर बताता हूँ सबको। आप एक बात बताइए, आप ये क्लाइमेट चेंज की कैलेमिटीज को शशांक एक बार मैं एक ऑर्डर बता देता हूँ। एक ऑर्डर में एक बार बता देता हूँ, समराइज करता हूँ मैं। सबसे पहले हम लेते हैं, सबसे पहले हम जो मान रहे थे पीस एंड सिक्योरिटी,
ठीक है, नंबर 1 सबसे पे पहले पीस एंड फूड सिक्योरिटी फूड रखते फूड हैं। फूड सबसे वाटर पहले रुकिए फूड रुकिए आएगा रुकिए ना, रुकिए the first रुकिए, एक बार मैं दे one देता हूँ, एक बार मैं दे पहले देता हम हूँ सुन लेते सारा, पहले हम एक बार सुन लेते समराइज हैं कर देता हूँ, सबसे उसके पहले बाद फूड हम है डिसाइड ठीक है करेंगे। ठीक है पहले हम फूड पहला सुन लेते पीस हैं एंड सिक्योरिटी है, फर्स्ट सेकंड फूड वाला एंड Food वाटर is the first, I think. सेकंड वाला Then फर्स्ट इज food, फूड एंड then सेकंड water, इज वाटर then after फर्स्ट that पहले food and peace and water. security. फर्स्ट उनकी बात हम फूड डिस्कस एंड करते वाटर हैं आई कि क्या थिंक है। सबसे पहला जो है वो फूड आएगा, उसके बाद सबसे Yes, पहले वाटर yes. आएगा, First वाटर is food, and second is then water, peace and third is security, peace and and then security. climate, and then एंड violence Food, against women, I think. फोर्थ इज ठीक है ठीक है, फर्स्ट वायलेंस अगेंस्ट फूड, वुमेन। सबसे पहले तो फर्स्ट पानी फूड, आएगा, सेकंड सेकंड फूड वाटर, आएगा। Yes, yes. नहीं नहीं Third, गौरव peace and गौरव security. third peace थर्ड and इज security. सिक्योरिटी, Yes, and फोर्थ fourth इज one is क्लाइमेट, the फोर्थ इज climate, क्लाइमेट चेंज। एंड फिफ्थ इज हम लोग the violence हम लोग against ऐसे भी women. देख सकते वायलेंस हैं कि अगेंस्ट कितने वुमेन। कितने वायलेंस फूड अगेंस्ट से कितने कंट्री इफेक्ट हो रहा है, वाटर से कितने कंट्रीज कंसिडर इफेक्ट हो रहा करना है, चाहिए। क्लाइमेट चेंज मुझे से लगता कितने है कि इफेक्ट अगर हो रहा है। हम क्लाइमेट लोग चेंज ऐसे को सबसे करके टॉप भी प्रायोरिटी पे रखते हैं चल ले तो सकते हैं। बाकी जो चीजें सबसे हैं पहले फूड और मैंने वाटर यही बोला था कि सबसे पहले हम इम्पैक्ट असेसमेंट देखेंगे, पांचों चीजों का कितना कितना पार्ट इफेक्ट हो रहा है एक्चुअल में। तो ये सब हम डाटा के 5 थ्रू देख कमेटी सकते हैं बनाएंगे, किसान। 5 कमेटी वो यही डिसाइड करेंगी कि जैसे फूड है, हो सकता हो कि फूड का एक सिर्फ बहुत मतलब एक कंट्री का बहुत छोटा परसेंट ही जूझ रहा हो, तो मतलब हाँ फूड और वाटर तो मैं मानता हूँ, लेकिन हो सकता है क्लाइमेट चेंज सिर्फ थोड़े से समय या बहुत ज्यादा, तो हम इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे कि किसमें अब उसके हो लिए सकता है फूड और हो सकता है पूरी वाटर दुनिया में वॉयलेंस अगेंस्ट कंट्री पे हो डिपेंड करती है सकता ना हो पूरी कि दुनिया में कुछ वॉयलेंस कुछ अगेंस्ट कंट्रीज वुमेन में हो, तो हम सबको सफिशिएंट प्रियोरिटाइज फूड करना पड़ जाएगा ना किसी चाहते अगर हुए भी। मैं ये कह रहा हूँ शशांक, कि एक वाटर जो से भले ही परमिट सिनेरियो yes, उसको yes. देखकर लोगों को काम एनालाइज होता कर है, वहाँ पे सकते हैं सारा यहाँ पे। डाटा रहता है, वो लोग चेक करके एक बता दिन सकते हैं कहाँ सबसे पे पहले हमें क्या तो सर्वे हम करना ऐसा चाहिए कर सकते अगर हैं अगर उनको वायलेंस पैसे अगेंस्ट देना है, वुमेन की बात क्लाइमेट करें तो वाटर वो इंटरनेशनल के हाथ में कम है, नेशनल लेवल पे हाथ में ज्यादा है। जो लोकल कंट्रीज के हाथ में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को कंट्रोल करने का पोटेंशियल ज्यादा है रादर देन इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा कुछ उसके ऊपर नहीं कर इंटरनेशनल सकते हैं। लेवल सिर्फ दबाव डाल सकता है, वो और मैं बोल रहा अगर हूँ बहुत ज्यादा इंटरनेशनल कुछ लेवल नहीं पे कर दबाव सकते, आया वो एक तो नेशन को लोकल लेवल काम पे करना किया जा पड़ सकता जाएगा। है। देखिए हाँ, एक बात क्लाइमेट बताइए बस, कंट्रोल करने के एक लिए बात बताइए, इंटरनेशनल लेवल जान पर मान की भागीदारी सबसे बहुत ज्यादा हानि इंपॉर्टेंट वॉर है। की वजह फॉर से हुई है एग्जाम्पल वी कैन रिसेंट सी में, दैट या क्लाइमेट एवरी चेंज की ईयर वजह से हुई है। सीओपी होता है ना, हर साल सीओपी की मीटिंग होती है, जैसे कि रिसेंट Yes. सीओपी 27 हुआ, क्लाइमेट के ऊपर हुआ। लेकिन हमने देखा है कि पेरिस एग्रीमेंट को अमेरिका ने ठुकराया है और उसने Yes. डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज दिया है रादर देन क्लाइमेट। यस 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 लेकिन उसने हमेशा अमेरिका ने किसको फोकस किया, हमें पीस एंड सिक्योरिटी पे फोकस किया उसने, है ना। तो हम यहाँ से एग्जांपल नहीं UN कर पीस सकते एंड कि सिक्योरिटी है सबसे ज्यादा डायरेक्टली और रेजोल्यूशन इनडायरेक्टली पीस और कंट्रोल सिक्योरिटी को लेके ही है। आप एक बात rather बताइए, than कल जो हमारा बजट climate change। हमारा जो बजट आया, अगर कल हमारा climate बजट आया, yes, सबसे yes, ज्यादा पहले परसेंटेज पहले डिफेंस को फूड दिया गया। प्रायोरिटी क्यों होती दिया है गया? मेन। क्योंकि पीस एंड सिक्योरिटी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल हमारा बजट आया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस yes, yes. डिफेंस को दिया गया। क्यों लेकिन हम डिफेंस को क्यों डिफेंस दे रहे हैं? डिफेंस हम खाना डिफेंस को दे जरूरी रहे हैं, हमारे लिए है ना, लेकिन बिकॉज हम घिरे पीस हुए एंड हैं सिक्योरिटी एनिमीज का से। पास लेकिन किसी ऐसे भी बहुत सारी कंट्री कंट्रीज है ना जो खुद की आर्मी इंडिविजुअल के कंट्री लिए, के लिए किसी भी बजट आया कंट्री है के ना। लिए पीस For- सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नाटो का और इसके एग्जांपल साथ देख सकते हैं ना, पीस एंड जो सिक्योरिटी के नाटो साथ ये जो सबसे बड़ा वुमेन्स मिलिट्री, वायलेंस का इशू नाटो है जो ये है भी लिंक्ड वो है। सबसे बड़ा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। Yes, वो yes, पीस एंड किसी exactly, सिक्योरिटी भी के मैं बाद पीस मैं सिक्योरिटी वायलेंस मेंटेन तो करने के लिए फर्स्ट बना है प्रायोरिटी इंटरनेशनल पे लेवल पे। फाइनल है कि नहीं, फिर पीस एंड सिक्योरिटी पे हम डिसाइडेड है कि नहीं फर्स्ट प्रायोरिटी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे। मुझे लगता है फिर कि उसके बाद नंबर 3 फूड वाटर के बाद, Majority is फूड वाटर के नंबर बाद, 3 फूड एंड वाटर के बाद, क्योंकि पर मुझे जो लगता छोटे है कि जो हम जो भी small- कंट्रोल कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं सबसे पहले। मतलब फूड एंड वाटर एक एक स्टेप में कंट्रोल हो जाएंगी। किसी नेशन ठीक के है। पास खाना आ सकता है, एक मतलब अगर नेबरिंग कंट्रीज है तो अरे, ऑब्वियसली एक दिन में भी तो खाना आ खाना सकता ज्यादा है। जरूरी है या शशांक, पानी? पानी ज्यादा पानी जरूरी है जरूरी खाना? पानी खाना और नहीं, खाने की पानी बात ज्यादा पानी जरूरी ना, है ना? पानी खाने क्या की है ना, बात एक पानी ना। पानी तुरंत की इज द जरूरत बेसिस है, मोड ऑफ लेकिन जब सर्वाइवल। बॉडी लॉन्ग टर्म कंटेंट देखेंगे तो 70% फूड की वाटर, जरूरत पानी होगी। सबसे पहले आएगा है। यार। वैसे तो फिर पानी इंडिया के सबसे हवा पहले। पहले आती है। पानी तो हवा पानी भी नहीं ज्यादा होगा तो जरूरी खाना है, क्या दैट्स होगा? क्लाइमेट। पानी नहीं होगा हवा तो भी खाना ज्यादा भी नहीं जरूरी है उगेगा, तो क्लाइमेट। पानी सबसे पहले होना किसी को चाहिए। भी रख सकते हैं पहले, लेकिन ये दोनों पानी को पहले मैं रखो। रखना चाहता हूँ कि सबसे पहले प्रायोरिटी पानी हमें जरूरत पानी नहीं को है, देनी हमें चाहिए। ड्रिंकिंग उसके वाटर, बाद ओके, प्यूरिफाइड ओके। वाटर की ज्यादा द जरूरत है, पीस आई थिंक हाँ, सो। वो एंड सोल्यूशन सबसे पहले प्रायोरिटी करने के पहले प्रायोरिटी वाटर
बना ले। ओके ओके, सबसे पहले वाटर इज water, आवर utmost priority, then food, उसके बाद फूड, देन फूड, then उसके बाद peace and food, security, then security, peace and security. सिक्योरिटी, And देन violence against women. क्लाइमेट नाउ आई चेंज। थिंक अब हमें आगे Violence against women should be हम taken इनको now. कैसे Fourth, अब हमें Yeah, शायद आगे yes, बढ़ना yes, चाहिए कि हम Fourth, इनको I टैकल think. कैसे करेंगे. Fourth, नाउ वी हैव once डिसाइडेड once we fix the peace and security issue, it's quite easy for us to one minute. fix Violence the against violence women against और women. क्लाइमेट चेंज में हम ये कर सकते हैं कि हम दोनों का इम्पैक्ट देख लें कि अगर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा ही है, तो हम हो सकता है कि फिर फोर्थ पे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन रख दें, देन क्लाइमेट चेंज रख दें। अगर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बहुत कम पार्ट में है और मतलब कर सकते हैं इजीली को, देखिए, तो फिर हम ऐसे देख सकते हैं ना कि वुमेन्स अगेंस्ट वायलेंस ये
शॉर्ट टर्म में ये ज्यादा क्या ज्यादा इफेक्ट करेगा इस प्रेजेंट टाइम और इन फ्यूचर 10 years? और इन लोकल देखिए, violence against women जो है, आपने कहा कि violence against women जो है वो हर जगह नहीं मिलेगा। Instead of prioritizing it. अगर वायलेंस को हम ज्यादा important वायलेंस वाला नीचे रखते हैं 5 नंबर पे, ऊपर डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि पर मुझे ये लगता है ना कि हम लोग उसको पर बहुत ज्यादा काउंटर नहीं कर इन माय अकॉर्डिंग violence और climate change के बीच में मैं climate को पहुंच इसलिए गया support करूंगा तो कहीं ना Because कहीं violence against women, खराब कर देगा। तो कहीं ना कहीं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो उसका सेक्स रेशियो खराब कर रहा है। मतलब See, आपने अमेरिका की बात कर ली, आपने नाटो की बात कर ली, आप थोड़ा सा इंडिया में हैं। देखिए, एक बार इंडिया में देखिए। एक बात बताइए, अगर मेल इस दुनिया में मेल ही अकेले बच्चे थोड़ी हो सकता है ना, तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन भी एक कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों का अगर वो एक्सट्रीम पहुंच गया, अगर वो बहुत एक्सट्रीम पहुंच गया वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो कहीं ना कहीं हार्म ही है ना, सेक्स रेशियो बिगड़ जाएगा। एक ही लेकिन बाकी 4 चीजों को तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नीचे जाएगा। क्या करेगा? हमने अगर थर्ड पे पीस एंड सिक्योरिटी रखा है, पहली बात हमारे पास नहीं है सॉल्व करने के लिए। मुझे लगता है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन भी ना वन स्टेप प्रोसेस है। वन स्टेप कहने का मतलब कम टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस है। अगर इसको प्रूव करना है तो मुझे लगता है हमारे पास ऑलरेडी मोमेंटम है, इसको इजीली टैकल कर सकते हैं वुमेन्स वायलेंस। हमें सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए कि हम इनको टैकल कैसे करें। हम ये भी कह सकते हैं ना कि पुराने टाइम में हमेशा इनइक्वालिटी रही है अगेंस्ट मैन एंड वुमेन। तो अगर हमने इसको लास्ट में रखा ना, तो अभी भी हम यही एग्जांपल दे रहे हैं कि मैन इज फार ग्रेटर देन अनइक्वल देन वुमेन। हम ये कहीं ना कहीं यहाँ पे चीजों को प्रायोरिटाइज कर लिया ये चीजें। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये क्लाइमेट चेंज को हमें प्रॉपर अटेंशन देने की जरूरत है। अगर हम ये 3-4 पॉइंट्स पहले ही फिक्स करते हैं तो हम पूरा फोकस हम क्लाइमेट चेंज पर लगा सकते हैं। हमारे पास 3 इश्यू सॉल्व करने को है, क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी और वायलेंस। हम क्लाइमेट चेंज को अगर सुने, अमेरिका की बात कर ली, नाटो की बात कर ली, 1/7 ऑफ पॉपुलेशन भारत की है। अपना पड़ोसी पाकिस्तान, एशिया की अगर बात करें तो किससे लोग मर रहे हैं? टेररिज्म से ज्यादा लोग मर रहे हैं, हैम्पर हो रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज जो हमारे भारत में कुछ 4-5 ऐसे स्टेट से जहाँ पे पानी की वजह से हजारों जान जाती है, हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। तो क्या मैक्सिमम कंट्रीज में जिसमें क्लाइमेट चेंज इतना भयानक है, फिर भी अगर हम पीस एंड सिक्योरिटी के 2 टर्म्स है, पीस प्लस सिक्योरिटी में अगर आप टेररिज्म वगैरह ले या वॉर ले, उसको एड्रेस भी किया जाता है। बट ऑन नॉर्मल डेज हर साल जो इनएविटेबल होते रहता है, नेचर की वजह से कैलेमिटीज आती रहती है, उसको हमें पहले देखना चाहिए पीस एंड सिक्योरिटी के। नहीं, अगर अभी लोग मर रहे हैं टेररिस्ट के कारण, एक बात बताइए क्लाइमेट का तुरंत क्लाइमेट लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर अभी क्लाइमेट चेंज बोल सकते हैं क्या? एक सेकंड हमको सिर्फ वन डे प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए। पता है क्लाइमेट चेंज एक दिन में रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। हम लोग एक दिन में नहीं रोक पाए, एक दिन में नहीं रोक पाए। We have to take it. नहीं रोक रहे, बट अगर किसी प्रॉब्लम को आप तुरंत काउंटर कर सकते हो तो आप उसको फोकस करो। कि लॉन्ग टर्म में आप किसी को काउंटर करते हो तो उसको फोकस करोगे। एक एग्जांपल लेता हूँ, फोकस करेंगे। ओडिशा में साइक्लोन आया, साइक्लोन इनएविटेबल था, उसको रोक नहीं पाए, लेकिन उसके लिए हम लोगों के लिए अरेंजमेंट कर पाए कि जो लोगों को कैसे अरेंज करना है, हमने उसके लिए मैकेनिज्म बनाए। साइक्लोन आने वाला है, हमको पता चलता है, तो हम भले रोकने की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम सोल्यूशन तो निकाल सकते हैं ना। हर चीज वन डे सोल्यूशन क्या होता है? हम प्रिवेंशन भी तो सही बात है ना। चीजों को प्रायोरिटाइज करने की बात आई है। सॉल्यूशन भी है और इंडिया में अब बॉर्डर से आपसे लास्ट 2 मिनट हटा दो, हमें क्या उसी पे फोकस करना पड़ेगा। लेट्स समराइज गाइस। प्रायोरिटी देनी चाहिए वाटर को, सेकंड फूड को, इट्स टाइम फॉर कंट्री प्रायोरिटी देनी चाहिए पीस एंड सिक्योरिटी को। हमें सोसाइटी पहले सोसाइटी फर्स्ट वाटर, नेक्स्ट फूड, then security, then climate change, and at the end we will keep violence against women. ठीक है, चलेगा। लास्ट में हम तभी रखेंगे अगर वो ज्यादा एक्सट्रीम ना हो। सोल्यूशन हो गया, अभी सोल्यूशन निकालते एक पॉइंट में सबका पानी का सोल्यूशन कैसे निकलेगा। अभी हमारे पास उतना डिस्कस करने का टाइम भी नहीं है। पानी पे फोकस करने का ड्रिंकिंग वाटर कैसे हो सकता है, पानी तो हर जगह है, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंकिंग वाटर कैसे किया जाए।
हाँ ड्रिंकिंग वाटर प्रमोट कैसे किया जाए? नल का पानी है, वाटर तो है, जैसे वाटर गवर्नमेंट ने लाई है, कैसे implement की जाए? Prioritize करने से पहले सबका बीमारियां ना हो, हम उस चीज पर फोकस करना चाहिए, क्लीन वाटर हाँ फोकस करना क्लीन चाहिए। वाटर। फिर फूड की इशू हम क्या कर सकते हैं? जिस कंट्री में फूड की शॉर्टेज है उसको उनको फूड प्रोविजन करना चाहिए। पॉल्यूशन के कारण ही तो अभी पानी क्या गंदा हो रहा है भारत में अगर ना, पॉल्यूशन के कारण ही तो पानी अफगानिस्तान को गंदा ट्रांसपोर्ट किया है, वैसे इंटर कंट्री रिलेशनशिप मेंटेन करनी चाहिए। फसलों के लिए उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि हाँ। अगर आपको कमी है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग डेवलप प्रमोट कर और सकते हैं। जैसे जो स्टेट में जरूरत है वहाँ उनका मिलेट प्रमोट जैसे कर जो सकते हैं कि आप फूड्स यहाँ से ग्रेन एक्सेस होते हैं, वाला हमें उस चीज पर सामान फोकस उधर करना भेजिए। चाहिए कि जो आसानी से ग्रो किए जा सकते हैं, कम पानी में ग्रो किए जा सकते हैं, बहुत जगहों पर ग्रो किए जा सकते हैं। तो हमारे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था ईयर ऑफ मिलेट्स, तो उस चीज को Okay, हमें listen, बढ़ावा just देना decide चाहिए now. नेशनल लेवल खाने पे। का तो हम वैसे conclude भी तो now. कर सकते हैं ना। 1965 में हमारे पास खाने की शॉर्टेज हुई थी, Yes, that is तब green हरित revolution. क्रांति आई हुई थी लाल Yes, बहादुर yes, yes, शास्त्री जी के द्वारा। तो खाने की शॉर्टेज तो हम बस ये एक एग्जाम्पल, हरित क्रांति जैसे एग्जाम्पल वो और तो दे के वो भी एग्रीकल्चर से कंप्लीट कर होगी, सकते पर हैं। उसके लिए बात ना हाउ टू टैकल पीस एंड सिक्योरिटी है, उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? थर्ड पॉइंट अगर लिया है पीस एंड सिक्योरिटी, हाउ टू फाइंड अ सोल्यूशन? यूज किया जाए या दूसरा नेबरिंग कंट्रीज से मंगाया जाए। हाँ वो तो पीस हो एंड गया। सिक्योरिटी के लिए हम क्या हाँ कर उसका सकते हैं? सोल्यूशन कैसे मोर निकलेगा? हमारे पास पीस एंड सिक्योरिटी कंट्रीज के बीच में पीस एंड उसका सिक्योरिटी का स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन इम्प्लीमेंट यही किया है, जाना चाहिए। यही है अगर कि टीटीएस हम उस टूटती देश है को बोल रहे हैं तो कि उसके ऊपर हम स्ट्रिक्ट अगर एक्शन होने चाहिए आपने कंट्रीज के ऊपर साइन जो करवा सकते हैं टीटीएस को treaty, जो तोड़ पहले रही भी है। होता आपने है। पीस मेंटेन नहीं करी तो हम आपको आइसोलेट तक कर सकते हैं, जैसे कि कहीं ना कहीं रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ओपेक लेकिन साइड रशिया उससे आइसोलेट हो नहीं रहा है। रशिया हम बल्कि उससे सिक्योरिटी और काउंसिल को और पावरफुल हो गया मजबूत करने की जरूरत है है। इंटरनेशनल लेवल पे। अगर रशिया पे जो सैंक्शंस की बात करते हैं तो उन्हें सैंक्शंस की और वजह से मजबूत करने की जरूरत है, रशिया उन्हें और ज्यादा और पैसा कमा इम्पोर्टेंट रहा है प्लेयर्स ऑयल को बेच इन्वॉल्व के। करने की जरूरत है। इंटरनेशनल लेवल जो तो सिक्योरिटी काउंसिल बन रही है और अदर प्लेयर्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत है उसके अंदर, कि ज्यादा से रशिया ज्यादा को कंट्रीज फाइट नहीं आएंगी करता। वो और आइसोलेट मजबूत होगा, तो और एक्शन ले पाएंगी उन कंट्रीज के ऊपर जो ट्रीटीज को वायलेट करती हैं। तो इस अगर हम उसको शायद क्लाइमेट कंपेयर चेंज करें है तो दूसरे कंट्रीज के बीच वो एक जो पहले बायलैटरल एनालाइज टॉक करना के चाहिए जरिए कि हम पोटेंशियल सुलझा थ्रेट सकते हैं। नहीं है वो जो कंट्रीज के बीच Are you में ready for पोटेंशियल conclusion है now? वॉरफेयर का, ये भले वो chances किसी भी चीज को लेके हो, चाहे वो लैंड को लेके हो, चाहे वो वाटर को लेके हो, हमें सबसे पहले उनको ग्रुप करना चाहिए कि किन किन कंट्रीज के बीच में वॉर पॉसिबल है। और उसके बाद हमें पहले से उसका सोल्यूशन डिसाइड करना चाहिए, उनके बीच में ट्रीटी करा के एक प्रॉपर समझौता होना चाहिए दोनों कंट्रीज के बीच में, कि ऐसा ना हो। जैसे अगर आप इंडिया पाकिस्तान का ही देख ले, तो हमें इंडिया पाकिस्तान का जो मेजर है वो एथनिसिटी और लैंड के वजह से है। तो हमें उसको अच्छे से उनको हमें सॉल्व कराना पड़ेगा एक टेबल में बैठा के कि ये प्रॉब्लम कैसे है। और हमें मतलब सपोज अगर कोई कंट्री नहीं मानता है, सपोज पाकिस्तान नहीं मानता है, तो हमें उन्हें समझाना पड़ेगा कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पे ऐसे सैंक्शंस लगेंगे। सो सपोज हमारे पास 200 कंट्रीज है यूएन में, तो 199 कंट्रीज को उस कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगाना पड़ेगा इफ दे डोंट अग्री विद अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो है पीस वाला जो केस है वो सॉल्व हो जाएगा। अब अगर हम चौथे नंबर पे वुमेन एंड वायलेंस अगर हम रखे तो उससे क्या होगा कि वुमेन का जो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में है और वेस्टर्न कंट्रीज में तो दिखता ही नहीं है। नहीं वेस्टर्न कंट्रीज में भी है पर हमें पता नहीं चल रहा हम देखें कि अफगानिस्तान में जो है ये वुमेन को प्रॉब्लम हाई हर कंट्री में है, उसको नहीं कर भाई दिया जा देखिए, रहा है। होता तो हर कंट्री में, होता तो हर कंट्री में, लेकिन अब हम हर कंट्री को लेके नहीं चल सकते। अफगानिस्तान हमें मेजोरिटी देखना पड़ेगा कहाँ पे होता है। कंसर्न रीजन है वहाँ पे उसके लिए कॉमन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के लिए। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ज्यादा एरिया में नहीं है तो हम लोग कहाँ अगर हम एक कंट्री का एग्जांपल ले तो वहाँ एक लॉ स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सजा कम और गंभीर सजा कर सकते हैं। केसेस पेंडिंग है वो फास्ट ट्रैक more concerned than the violence against women at the present scenario when we're seeing स्ट्रिक्ट लॉज बनाने at the पड़ेंगे international वायलेंस level. अगेंस्ट वुमेन को रोकने के लिए हमें स्ट्रिक्ट लॉज बनाने पड़ेंगे। स्ट्रिक्ट लॉज के साथ साथ वो जो कोर्ट्स में जो केसेस पेंडिंग है वो भी हमें जल्दी से जल्दी निपटाने पड़ेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में वो केसेस चलाने पड़ेंगे। और मैं एक और पीस का बता देता हूँ, सुनिए, एक और पीस का मैं बताना चाहता हूँ कि हमें वीटो हटाना पड़ेगा। बिकॉज हर बार कोई भी प्रॉब्लम होती है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो वीटो ओन्ड कंट्रीज है वही करती है। आप चाइना को ले लो, आप यूएस को ले लो, आप रशिया को ले लो, ये तीनों कंट्रीज अपना दादागिरी चलाते हैं। तो अगर उसे कंट्रोल करना है तो हमें उनसे वीटो का पावर खींचना होगा। एवरी कंट्री शुड बी सीन इक्वल। Conclude now fast. I would like to conclude on the behalf of the group that the things that should be prioritized is the food is the topmost at the point कि जो food का जो security है
या जो वाटर है वो टॉप मोस्ट पे रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर लोगों को क्लीन वाटर पीने के लिए नहीं मिलेगा तो उससे बहुत ज्यादा बीमारियां होंगी और लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी रेट देखने को मिल सकता है। जब हम अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में देखते हैं तो वहाँ सबसे ज्यादा जो बीमारियां होती हैं, जो लोग मरते हैं, वो लैक ऑफ द क्लीन वाटर की वजह से होता है। हमें वाटर को, जो क्लीन वाटर लोग तक पहुंचे, सबसे पहले प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। And then we can see that the food is the second topmost priority because of the deaths we can see in African countries itself is due to the malnutrition. जो malnutrition उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि जो देश सबसे ज्यादा होती है। और ऐसा भी हम देख सकते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो वहाँ भी फूड सिक्योरिटी बहुत दिक्कत हुई थी। तो उस समय हम देख सकते हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल, तो food should be the second point. And the third point, I think we have kept the peace and security. क्योंकि अगर पीस एंड सिक्योरिटी रहेगा तो हमारा देश आसान, मतलब इजिली लीव कर पाएगा, आसानी से रह पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख सकते हैं रसिया और यूक्रेन के वार से बहुत ज्यादा हैम्पर हुआ है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है, लोगों का फूड सिक्योरिटी लैप्स हुआ है बहुत कंट्री में बिकॉज ऑफ दैट पीस एंड सिक्योरिटी। अगर पीस एंड सिक्योरिटी पूरे इंटरनेशनल लेवल मेंटेन रहेगा तो सारी कंट्रीज एक साथ ग्रो करेगी, इससे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा। एंड द फोर्थ पॉइंट वी हैव केप्ट अवर दैट क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन, बिकॉज कि हम देखते हैं कि हर साल हमारा एक सीओपी का मीटिंग होता है। रिसेंट सीओपी 27 मीटिंग हुआ था। तो क्लाइमेट चेंज अगर हम कंट्रोल करते हैं तो बहुत ज्यादा देश को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हर साल उड़ीसा में देश आती है और उस तरह का हर साल बहुत ज्यादा अर्थक्वेक एंड फ्लड रिसेंटली बहुत ज्यादा बढ़ गया बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। और बहुत सारे कंट्री जो आइलैंड्स हैं वो डूब रही हैं, तो उन सबको भी वो उससे बहुत ज्यादा देश में लॉस हो रहा है। तो उस चीज को बचाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज पे, जो देश काम कर रही है ऑलरेडी। एंड आई थिंक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज आल्सो द मोस्ट कंसर्न, बट इट शुड बी कम एट नंबर 5th पॉइंट व्हेन वी कंपेयर टू द other 4 points. But it is also a major concern because half of the population is under threat. Then we should have to secure that. जैसे हम देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में जो वुमेन के अगेंस्ट जो हो रही है वायलेंस, वो बहुत ज्यादा इनह्यूमन है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रॉन्ग लॉज बनाने चाहिए उन कंट्रीज के ऊपर जिस कंट्रीज में बहुत ज्यादा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो रहा है, उस कंट्री के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। इन दैट वे वी कैन हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स एंड वी हैव टू कंट्रोल द थिंग्स। थैंक यू सर। Okay, so let me tell you, there is no right or wrong answer to the task, but the way you justify task, that is important actually. Let me tell you what is the perspective, how you can approach this kind of task. Whenever there is a conflict between humanity, human life, planet, environment, national security and resources, then importance must be given to the human life. Here the security is not national security, it's a global peace and security. So humanity should be given priority, then planet. If I were at your place, I'll give the value to violence against women at number 1. Why? Because 50% of the population on the planet is of women, and violence should be stopped. Because if the humanity is compromised, everything is compromised. You can't expect peace and security if violence against women is continuing. So that should be given priority number 1 by global leaders. That issue should be raised, that violence against women should stop. Then second level comes of climate change and pollution. And why I'm saying that is because planet is to be saved. And if you see, you people are talking about food and water. It is not that food and water urgent need is there, that people are not having water right now. It is none of these points are short term. Short term urgency वाला केस तो मीट करना ही है. Short term तो हमें मीट करना है, urgency है तो that we have to do. Suppose there is no water, then you will leave everything aside and you will provide water. But this is not that case. It is like availability of the water and prevention the scarcity of the water, fresh water, and providing the fresh clean water to people in long term. Now if I ask you why fresh water is not available, you will say, sir, water is polluted. And if I say, then what is the solution? Sir, pollution should be stopped. That means we need to focus on the pollution. Food, why food is not there? Sir, because monsoon was not there this year, production is not there, so food is not there. Why monsoon could not come properly? Sir, because of climate change.
So climate change has a big impact on production of the agricultural products, and that is the reason food scarcity may be there. That means the food and water problems are largely related to the pollution and climate change. So if we solve this problem, then food and water can be properly, as a resource, we can get it. Now suppose there is no pollution, water and food is there, climate problem is also not there, violence against women is also stopped, peace and security automatically comes. So it is not that first can you ensure peace and security in the world if water is not there, food is not there, and pollution is there, and violence against women is also there. We cannot ensure that. So even if you see the order and the relation between all these, then this particular thing justifies, and that is how we are to proceed forward. There are certain urgent situations. Urgent situation में तो आपको decision अलग लेना पड़ता है. There is a national threat, national security is at threat. तो human को भी compromise करना पड़ेगा वहां पे. When we go and give our life to protect the country, national security becomes supreme important in that situation. Environment, human life, everything comes secondary. National security becomes important, but this is not that case. It is a long term. I mean, it is like G20 meeting, G8 meeting. I mean, global leaders are meeting and then they have to decide about certain things. So those things, what is importance is like, that is what we are discussing. It is not that water is not there. You people are misunderstanding it like water is important, air is important, food is important. So air नहीं होगा तो oxygen नहीं आएगा, I'll die. Air सबसे important. Then water, then food. We are not talking about that priority. This is something different. This is like global leaders should discuss about which matter. That was the discussion. So as I told you, like there is no fixed pattern of these answers, but he's not interested in answers also. He's interested in how you are reaching that answer. And maximum people are getting eliminated because they don't reach consensus. उनको group जैसे एक group में 7 में से only 1 got selected, 6 got eliminated. Why? Because they found that they are not worth. And I tell you, HPCL last year took more than what they advertised. They can take even less than what they advertised because they want right people. They don't get right people, they will not take it. Next year again they advertise and they try to take more people. So number of seats is not like if they want this side, they're going to fill that seats. It is not like that. If they don't find some suitable, they will eliminate you. This is how this is going to be. तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हें लॉजिक नहीं आ रहा है, अगर तुम ढंग से बात नहीं कर रहे हो, सिस्टमेटिकली सोच के बात नहीं कर रहे हो, तो दे मे एलिमिनेट यू. यू नीड टू थिंक इन दैट पर्सपेक्टिव. तो ये आइडिया कहाँ से आते हैं? सुन के आते हैं. हम लोगों ने पढ़े हैं, हम लोगों ने इसको किया तो हमें आइडिया आया, हमसे सीखोगे आपको आइडिया आएगा. दैट इज हाउ इट गोस एक्चुअली. राइट? एनीथिंग यू वांट टू आस्क और टेल नाउ? काम की बात बोलो, मे बी इट इज लेस, तो आप पास हो जाओगे. सर अगर फूड और वाटर को पहले प्रायोरिटाइज किया तो सर ये करना गलत भी तो नहीं है अगर हम शॉर्ट टर्म देख रहे हैं तो सर कहीं पे आपको बोलना है शॉर्ट टर्म, लेकिन वहां पे गलती ये हो जाती है कि ये लोग शॉर्ट टर्म में डिस्कशन नहीं करते हैं. G8 में कंटेक्स्ट देखो. हाँ, यूएन में तो सर, हाँ, यूनाइटेड नेशन में अगर G8 के लीडर मिल रहे हैं तो शॉर्ट टर्म किसी कंट्री में वाटर शॉर्टेज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं ये लोग. बट इमीडिएट रिजोल्यूशन भी तो होते हैं ना, वो तो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही होते हैं सर यूएन में. बिल्कुल होते हैं, लेकिन केस होता है ना उसमें कि कहीं फ्लड आ गया, यूक्रेन रशिया वॉर हो गई, केस टू केस बेसिस होता है वो. पर ये तो ऐसा केस लग ही नहीं रहा है, दिए नहीं है उसने. सर मतलब फिर इसका तो कोई परफेक्ट आंसर होगा ही नहीं सर, वो तो डिपेंड्स. लेकिन जो भी आंसर होगा उसका एक्सप्लेनेशन परफेक्ट होगा. आंसर परफेक्ट नहीं हो सकता, एक्सप्लेनेशन परफेक्ट होगा. सर इस आंसर के लिए आप फिर डिवाइड कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए ये प्रायोरिटी होगी और लॉन्ग टर्म के लिए ये प्रायोरिटी होगी. तो उस केस में हम दो लिस्ट की दो प्रायोरिटीज यूज कर सकते हैं. अगर आप ये बोलेंगे कि वाटर को प्रायोरिटी देनी है तो फिर वाटर को प्रायोरिटी जब देनी है तो वाटर कैसे आएगा? वाटर के लिए क्या करेंगे कंट्रीज? सबसे पहला सोल्यूशन आता है कि उसका पोल्यूशन रोकना है, वाटर पोल्यूशन. और अगर वाटर पोल्यूशन रोकना है तो ऑटोमेटिकली वाटर पोल्यूशन नंबर 1 पे चला जाता है. आप खुद सोचो वाटर कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? सर पर वाटर पोल्यूशन एक दिन में तो नहीं रुकेगा ना सर, उसके लिए तो मतलब टाइम लगेगा सर. और फिर वाटर पानी भी तो तुम तो एक दिन जैसे में नहीं शॉर्ट दोगे. टर्म है.
वाटर एक दिन में कैसे दोगे? सर जैसे वाटर स्केर्सिटी का मतलब है कि कुछ एरिया है जहाँ पानी है ही नहीं, तो हाँ वहाँ पे सर। एरिया पानी ट्रांसफर किया जाता है। फॉर एग्जांपल सिटी टू सिटी ट्रांसफर होता है हमारे यहाँ पे पानी इन फॉर्म्स ऑफ टैंकर्स। सर देखिए जैसे वो पेट्रोल के कंट्री कंटेनर्स स्पेसिफिक आते है, हैं तो पानी भी तो जा सकता है ना सर, ट्रांसफर हो सकता है, क्या वो दिक्कत है कंट्री अगर स्पेसिफिक है। शॉर्ट टर्म है? आपको लगता है वो मोदी कभी भी G8 में जाके डिस्कस करेंगे अपनी कंट्री के वाटर शॉर्टेज? सोचो, नहीं। शॉर्टेज आए वो तो स्टेट स्पेसिफिक हो, तो कंट्री भी डिस्कस नहीं करती। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपकी थिंकिंग वहां लेवल तक जानी चाहिए ना, कि हमारी कंट्री में वाटर शॉर्टेज आ गई और यूनाइटेड नेशन में प्राइम मिनिस्टर गए हैं। डू यू थिंक ही विल एवर डिस्कस वाटर शॉर्टेज इन इंडिया इन यूनाइटेड नेशन? सर वो तो हमारा सर स्पेसिफिक इंडिया है सर, अगर वो सहारा डेजर्ट वाली कंट्रीज करे तो वो तो सर डिस्कस करती होंगी ना, अब हम ध्यान नहीं देते वो अलग चीज है सर। G8 टॉप लीडर्स हैं 8 कंट्रीज के, ये वर्ल्ड की हाँ बात कर बट रहे हैं। सर वो यूएन में है ना सर, यूएन की बात हो रही है, यूएन में तो सर 200 तुम नेशंस देखो हैं। दोबारा बात खींच के वहीं ले जा रहे हो, तुम अपना पॉइंट जस्टिफाई करने के लिए सारी बातें वहां ले जा रहे हो। वो कुछ और तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम उस डायरेक्शन में सोचो। सर अगर कोई ऐसा काउंटर करता है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ए फर्स्ट पॉइंट, बट ये भी तो देखा जाएगा कि सर वर्ल्ड में मैक्सिमम कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ वुमेन पे वायलेंस नहीं हो रहा है। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को अगर हम लीव करें तो ये पॉइंट अपने फर्स्ट पे कैसे रखा? अगर ऐसा काउंटर आता है तो कैसे करेंगे सर इसको टैकल? देखो अगर ह्यूमैनिटी आपकी वो है, मतलब जिंदा वो ह्यूमैनिटी सफर कर रही है, तो वैसे भी ग्लोबल पीस रिस्टोर नहीं हो सकता। आप समझो, जब आप वुमेन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन रोकने चलेंगे तो वर्ल्ड की सारी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाएंगी। सोच के देख लो, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कैसे रोकोगे? जो तुम स्टेप्स लोगे उससे वर्ल्ड पीस वैसे रिस्टोर हो जाता है, उस डायरेक्शन में अगर काम करना स्टार्ट करोगे। दैट इज व्हाट यू नीड टू थिंक एक्चुअली, कि वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस होता क्यों है, कहाँ होता है। सर ये भी तो कह सकते हैं सर कि बहुत सालों से चलता आ रहा है अभी तक तो वायलेंस। चलने दो। नहीं अभी तक से कंट्रोल नहीं किया गया अभी है। भी तो सर मतलब अफगानिस्तान में अभी तो वुमेन चल के रहा है, राइट्स कंट्रोल ले नहीं लिए किया गए गया सर, है। तो भी कुछ थोड़ी हो रहा है सर। तो उसका मतलब ना करो। नहीं तो फिर मेरे सर कहने का हम मतलब उसको इंटरनेशनल प्रियोरिटाइज लेवल पे कैसे कभी इस कर पे बात सकते हैं कोई सर? डिसीजन नहीं आप आया कह है रहे हो कि स्पेसिफिकली। अगर उसके वोमेन अगेंस्ट स्टेप्स लो। वोमेन हो गया, मतलब सही रह गया, तो फिर सब कुछ पीस रहेगा, तो सर चलो इतना बता दो, जस्टिस वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस रोकना चाहिए कि नहीं, पहला क्वेश्चन। रोकना बिल्कुल चाहिए। अच्छा उसके लिए क्या स्टेप लेने चाहिए अभी ये बताओ। सर लॉज उनको फ्रेम सर करने चाहिए जैसे उनके कि आगे, मैंने जिससे सोचा था वो कि सर प्रिवेंट हो। उनको सर उनको पहले सब बताएं रीजन कि फाइंड आउट करना देखिए चाहिए कि कोई वायलेंस भी किसके अगेंस्ट क्यों हो रहा है। मेल और फीमेल इस दुनिया में रहने के लिए दो लोग जरूरी है ना, मेल और नहीं, फीमेल। अगर आप फर्स्ट वायलेंस रीजन एक्सट्रीम फाइंड आउट कर रहे करना हो चाहिए ना तो कि कहीं ना कहीं वायलेंस आप हो क्यों रहा है, क्या रीजन है कि ये वायलेंस हो रहा है वुमेन्स के अगेंस्ट। फिर से उस बोलो। रीजन के वुमेन को अकॉर्डिंग फिर हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। वुमेन को सर हमें एम्पावर करना पड़ेगा, क्योंकि वुमेन एम्पावर होंगी तो तो उनमें एम्पावर इंफीरियरिटी कैसे कॉम्प्लेक्स करते नहीं हैं? वुमेन आएगा। को एम्पावर कैसे करते हैं? आगे चलो, पहले एक स्टेप आगे। एजुकेशन को देंगे, एम्पावर करने के लिए एजुकेशन सबसे पहले हमें यस, अब उनकी बिल्कुल सही पढ़ाई पकड़ रहे हो पे लाइन। एजुकेशन सर देके सोशियो इकोनॉमिकली डेवलप करके एम्प्लॉयमेंट यस दिलवा के, यस यस जब तुम ये कर दोगे, ध्यान से सुनना, जब तुम ये कर दोगे सारी प्रॉब्लम जो वहां लिखी है सॉल्व हो जाएंगी। सर तो बट क्लाइमेट इसलिए पे वो इसका क्या रोल आएगा? सपोज वुमेन के अगेंस्ट हमने सॉल्व भी कर दिया, नेचुरल कैलेमिटीज तो फिर भी टॉप पे आएंगे ना, देखो क्योंकि मैंने उस पे आपको तो शुरू जाने में ही बता जाने। दिया था कि क्लाइमेट और बाकी 4 चीज कनेक्टेड हैं, और ये जो पार्ट है ये ह्यूमैनिटी से कनेक्टेड है। ये जो पार्ट है ह्यूमैनिटी से कनेक्टेड है, फिर प्लेनेट आता है। बट सर तो इसका ये चीज अलग थे 2 पॉइंट, लेकिन बाकी जो 4 पॉइंट है वो कनेक्टेड है क्लाइमेट के साथ। और ये जो पीस वाला है ये वुमेन एक्सप्लॉयटेशन से भी कनेक्टेड है। और दूसरी बात, घर कौन चलाता है? मेजोरिटी वुमेन। हाँ, चूल्हा चलाती है वुमेन। अगर एजुकेटेड वुमेन होगी वो चूल्हा लकड़ियां नहीं जलाएगी, वो LPG सिलेंडर चलाएगी। आप देख लो, अगर वो उस डायरेक्शन में अगर पढ़ा लिखा हो जाए, 50% पॉपुलेशन पढ़ी लिखी हो पॉल्यूशन जाए, ही नहीं होगी। हाँ, तो पोल्यूशन कम हो 50% जाएगा। पॉपुलेशन पढ़ी लिखी हो जाए तो वेस्टेज ये सब चीज रुक जाता है ऑटोमेटिकली। और सर अगर एजुकेशन ही तो एक रीजन है जो आपको उससे निकाल सकता है। यस सर, अगर वुमेन पढ़ी लिखी होगी तो नॉर्मली हम घर में देखते हैं मम्मी सर लोग बट सर साबुन ये लगाती जो हैं और नल वुमेन ओपन जो करके पढ़ी लिखी होती है, पानी ऐसा वेस्ट कहीं करती लिखा रहती हैं। थोड़ी है कि वुमेन जो पढ़ी लिखी होती है उनके खिलाफ वायलेंस नहीं होता। सर वायलेंस तो उनके खिलाफ भी तो होता ही होगा ना यस, सर। उनके खिलाफ भी होते हैं, और उसका भी सोल्यूशन जो है वो कॉमन सोल्यूशन है। फिर उसके खिलाफ जो वायलेशन वो होता है वो, क्योंकि उसका सिस्टम वैसा नहीं बना हुआ है ना। जो वायलेंस होता है पढ़ी लिखी वुमन का, वो इंडियन जैसे कॉन्टेक्स्ट में होता है, इकोसिस्टम सही नहीं है। अमेरिका में नहीं होता, डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं होता, क्योंकि यहाँ इकोसिस्टम वैसा है। जैसे यहाँ पे अरेंज मैरिज होती है, इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती इंडिया में। तो कितनी पढ़ी ट्रांजिशन लिखी है, तो किया। इकोसिस्टम है ना वो।
पढ़ी लिखी वुमेन होगी तो फिर वो अपने अगेंस्ट जो वायलेंस हो रही है उसके लिए आवाज उठाएगी, और जो पढ़ी लिखी नहीं होती है वो लोग कहीं ना कहीं दब जाते हैं, क्योंकि अगर वायलेंस होता भी है तो वो जाके कंप्लेन नहीं कर पाते, सपोर्ट नहीं कर पाता उनको। अभी क्या हुआ था अफगानिस्तान में जब यूएस थे फोर्स, तो वुमेन ने अलग अलग काम करना स्टार्ट किया था, उनकी डेवलपमेंट हुई थी और कुछ बाहर निकलना स्टार्ट किया था उन्होंने सबने, तो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो। बट सर इसमें ऑर्डर मैटर करता है क्या सर? हमने जो ऑर्डर दिया वो अलग था कंपेयर टू व्हाट शुड बी द आइडिया। ऑर्डर में फिर वही बोलूंगा, ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन तुम क्या लॉजिक से ऑर्डर दे रहे हो वो मैटर करता है। अगर तो तुम वाटर ऊपर रखना चाहते हो तो रखो, लेकिन रीजन बताओ क्यों, वो जस्टिफाइड होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमारा सर एज अ ग्रुप कितना लॉजिकल था जो ऑर्डर हमने दिया था फर्स्ट फॉर फूड देखो वाटर? लॉजिक ऑर्डर जो मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि आप ऑर्डर अपने आप इंपॉर्टेंट नहीं होता, लॉजिक इंपॉर्टेंट होते हैं। और तुम इसको वाटर एंड फूड को जो लॉजिक दे रहे हो वो ये है कि ह्यूमन के लिए वाटर एंड फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इंपॉर्टेंट है। बिना पानी के घर आप सर्वाइव नहीं कर सकते 2 दिन 4 दिन। ये वो डिस्कशन नहीं था, ये था वर्ल्ड लीडर पानी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या डिस्कस कर रहे हैं सोच के तो देखो, वर्ल्ड लीडर बैठे हैं 8 कंट्रीज के, पानी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या कर रहे होंगे जरा सोच के देखो कि नेपाल में पानी खत्म हो गया है, इसके बारे में नहीं ना डिस्कस कर रहे होंगे कि पानी का टैंकर भिजवा दो नेपाल को, बांग्लादेश में टैंकर खत्म हो गया, पानी की सप्लाई कम हो गई है, पाइपें टूट गई हैं, ऐसा थोड़ी डिस्कस कर रहे हो। पूरे प्लेनेट अर्थ के ऊपर पानी की स्केर्सिटी हो रही है, उसका क्या करें? बोले कि पानी की क्यों स्केर्सिटी हो रही है? पॉल्यूट हो गया है, पॉल्यूट क्यों हो गया है? इन रीजन से हो गया, तो इसका क्या करें? वी नीड टू पॉल्यूशन। अरे वर्ल्ड लीडर है यार, वो कि म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर थोड़े है, वर्ल्ड लीडर है, तो वो जो बात कर रहे हैं प्लेनेट की बात कर रहे हैं ना वो। करेक्ट। पहले प्लेनेट में जब तुम पोल्यूशन नहीं हटाओगे, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं करोगे, तो वाटर आपको मिलेगा ही नहीं, क्लीन वाटर कैसे मिल जाएगा? तो सर वाटर और फूड में फिर जो कंपैरिजन रखना है मुझे सेकंड और थर्ड पे, वो मैटर नहीं करेगा ना, वो थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा ना मे बी सेकंड? देखो वाटर तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, वाटर अगर साफ हो तो फूड साफ बनता है, रिवर्स नहीं होता। लॉजिक देना ना तुम्हें। वाटर बॉर्न डिजीजेस होती है ना बहुत सी। ओके करेक्ट। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे सर बहुत ज्यादा ग्रुप डिस्कशन में कोई पॉइंट मैंने रख दिया, लेकिन वो पॉइंट किसी के द्वारा नोटिस नहीं किया गया, तो मैं क्या उस पॉइंट मुझे बार बार रिपीट करना चाहिए, ग्रुप में नहीं करना चाहिए? आप एक बोलो ऑब्जर्वर नोट करते हैं वहां पे, बड़े ध्यान से ऑब्जर्वर नोट करते हैं पॉइंट्स आपके, वहां पे ऐसा नहीं होता, नोट होते हैं तुम्हारे पॉइंट। फिर वहाँ पे एक ऑब्जर्व, बिकॉज हम जो 12 लोग थे हम एक दूसरे का पॉइंट नहीं समझ पा रहे, तो वैसे उधर वो समझ पाते हैं। काम की बात करो, वहां पास हो जाओगे। काम की बात करना वहां पे, लॉजिक की बात करना वहां पे, रिस्क वो नहीं होता, क्योस नहीं होता वहां। तो सर मैंने जब स्टार्ट हमने करा था तो मेरा पॉइंट, मैंने ये पहले प्रायोरिटीज यही रखा था। पहली प्रायोरिटी मेरी थी कि मुझे क्लाइमेट चेंज को पहले रखना है, बिकॉज बाकी सब उससे इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो मैंने जब ये रखने का कोशिश करा तो अब वहां पे ऐसा हो गया कि सारे के सारे बाकी लोग फूड और वाटर से डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे उस टाइम पे क्या करना चाहिए? मुझे उनके साथ अग्री करना चाहिए या मुझे अपना पॉइंट उधर रखने का कोशिश करना चाहिए? तुम अपना जो पॉइंट रख तो दिए तुमने, अब आगे उनके साथ डिस्कस करो, फिर और अच्छे पॉइंट्स देते चले जाओ। तो मेरा जॉब ये नहीं है ना सर कि उन्हें मनवाना है मेरे ग्रुप वालों को, मुझे बस अपना पॉइंट रखना है, वो माने ना माने वो उनका तुम उनसे डिसीजन। क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछना तुम्हारा राइट है, जिसका वो आंसर नहीं कर पाएंगे अगर तो खुद मान जाएंगे। क्वेश्चन पूछना तुम्हारा राइट है, तो उनको वो ना करके देखो, टीचर कोई चीज पढ़ा रहा है और तुम उसकी रिस्पेक्ट करते हो, तुम उसको ये नहीं बोलते हो कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो। क्वेश्चन पूछना तो राइट हो सकता है ना तुम्हारा। जैसे तुम मेरे से पूछ रहे हो, ऑब्वियसली मैंने कुछ लिस्ट दिया तुम्हें, तुम उससे एग्री नहीं कर रहे हो, तो तुम मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो। तुम ये मेरे को डायरेक्टली तो नहीं बोल रहे हो कि सर आपने गलत पढ़ाया या आप गलत बोल रहे हो, लेकिन तुम क्वेश्चन तो पूछ ही रहे हो ना। यही तो चल रहा है, मैं इतनी देर से जस्टिफाई कर रहा हूँ अपनी लिस्ट और तुम पूछ रहे हो मेरे से। तो जब तक तुम सेटिस्फाई नहीं होंगे मेरा काम खत्म नहीं होता है। तो तुम क्वेश्चन पूछो उनसे, अगर वो जस्टिफाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो खुद ही तुम्हारे फोल्ड में आ जाएगा। अगर किसी स्टेज पे मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा तो इसका मतलब मैं जो लिस्ट दे रहा हूँ कन्विंसिंग नहीं हूँ उसमें, ये होता है। तो आप पूछो उनसे कि अगर आप बोल रहे हैं कि सब वाटर फूड को वाटर से ऊपर देना है, तो पूछो उनसे कि ऑन व्हाट बेसिस अनुज यू आर सेइंग फूड शुड बी गिवन मोर प्रायोरिटी देन वाटर, कैन यू एक्सप्लेन मी दैट। तो अगर अनुज नहीं आंसर दे पा रहा है तो तुम जीते, तुम्हें नंबर मिलेगा। करेक्ट। तो सर एक और क्वेश्चन था मेरा, सपोज जब डिस्कशन होता रहता है तो कई बार ऐसा होता था 4 लोग 5 लोग साथ में बोल रहे हैं, तो वो बहुत खिचड़ी हो जाता है, तो अब ग्रुप को कैसे शांत करें और कैसे हम? वहां पे ऐसा नहीं होता पांडे, वहां नहीं होगा ऐसा, डोंट वरी। वहां पे बड़े स्मूथली चलेगा डिस्कशन।
अगर खिचड़ी पक रही है तो तुम उस खिचड़ी का पार्ट मत बनो, बस तुम उनको हमें बोलने दो, वो हमें शांत बाहर होकर निकल सुनना है, जाएंगे। बस हमें शांत होकर सुनना है। क्योंकि तुम्हें सर काफी टाइम आपको मिलेगा अपना पॉइंट रखने का। सर ओके आपको सर। काफी एक्सपीरियंस, मतलब जो अभी एक्सपीरियंस करा होगा बच्चों ने जिनके हो गए, उन्होंने शेयर करा होगा, तो थोड़ा सर कुछ बताइए कैसा क्या रहता है वही वहाँ तो पे, मैं मतलब बता रहा हूँ रिसेंट। तुम्हें, शुरू में मैंने वही तो बताया कि अगर काम की बात बोलोगे और टू द पॉइंट बोलोगे तो पास हो जाओगे, अगर वैसे बोल रहे हो बोलने के लिए तब नहीं पास होगे। तो ऐसी बात कोई मत बोलना जो आप कन्विंस नहीं है। वो बेसिकली ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो क्रिएटिव सोल्यूशन दे सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं और रियलिस्टिकली सोच सकते हैं, डीप जाके सोच सकते हैं। जैसे ये भी एक सोच ही है कि पानी देखते ही तुम पानी की तरफ झट, अगर मैं एयर लिख देता तुम एयर पकड़ लेते, तो तुम वो उस चीज पे तुम अलग सोच रहे हो ना यार। वो उसने क्यों दिया है, 8 लीडर्स डिस्कशन कर रहे हैं, एक लीडर्स हटा दो, वो हटा दो लाइन, तो फिर डिस्कशन कैसे करते? तो वही आंसर देते तुम मेरे को जो अभी दिया था आपने। मैं 8 लीडर ग्लोबल और यूनाइटेड नेशन हटा देता हूँ ये लाइन। अब बताओ तुम्हारा आंसर क्या है? मेरा आंसर चेंज हो जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा। तुम वही दे रहे, इसका मतलब कि तुमने वो चीज फोकस ही नहीं किया कि 8 लीडर बैठे होते हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठे हुए थे। तो इसका मीनिंग होता है, जो भी चीज वहां देता है उसका मीनिंग होता है। जैसे बिजनेस वाला है कि फ्लोरिशिंग बिजनेस है, फ्लोरिशिंग बिजनेस दे रखा है, तो इसका मतलब कि बिजनेस बंद नहीं करना है, फैमिली बिजनेस है ना वो, तो उसको बंद नहीं करना, चलाने में बहुत टाइम लगता है, जनरेशन लग जाते हैं बिजनेस को फ्लोरिशिंग तक ले जाने में। तो तुम्हें पकड़ना है ना, पॉइंट पकड़ने हैं यार उसको। बट सिर्फ जो 8 लीडर्स थे, सो जो हम स्टार्टिंग में भी ये भी बात किया कि सो जो मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें हर कंट्री को क्या इंपॉर्टेंस लगता है, सो हम वैसे प्रेजेंट कर सकते हैं हमारा ये तुम अप्रोच। जो मर्जी मैंने बताया सोच सकते हो, लेकिन उसको कंक्लूजन तक अच्छे लॉजिकली कंक्लूजन तक ले जाना है तुम्हें। सर प्रेजेंट सिनेरियो का एग्जांपल दे सकते हैं ये नाम लेकर चीजों को? हाँ बिल्कुल, एग्जांपल दो, देना चाहिए। सर नहीं, नाम ले सकते हैं कि नहीं? अच्छा ये किसका? जैसे मैंने नरेंद्र मोदी का नाम ले लिया या किसी और प्रेसिडेंट का नाम ले लिया। देखो किसी का भी नाम लेना है तो उसके क्रिटिसिज्म के लिए नाम मत लेना कभी, वो एलिगेशन लगता है। प्रेज कर सकते हो, प्रेज कर सकते हो, कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। अगर तुम बोल रहे हो कि नहीं साहब ये जो है ये पॉलिटिकल लीडर ने ठीक नहीं किया, तो वो एलिगेशन होता है वो। अगर तुम बोल रहे हो कि पॉलिटिकल लीडर ने अच्छा किया, तो एलिगेशन नहीं होता। तो ओपन ओपन प्लेटफॉर्म पे आके किसी की प्रेज करने से ट्रबल नहीं होता, लेकिन फिर भी अवॉइड करना पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में कुछ भी कमेंट करने से, क्योंकि उनका अपना अपना ओपिनियन होता है। हो सकता है वो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से फेवर करता हो या वो नहीं उसको करते हो, उनका अपना ओपिनियन हो सकता है। सर ये जीडी का ड्यूरेशन कितना होता है, कितना चल रहा है? 20-25 मिनट। नहीं बोलने के लिए कितना टाइम देते हैं? वो 20-25 मिनट। और बाकी तो फीडबैक थोड़ी देते हैं आपको। और नहीं सर, ऐसा होता है क्योंकि वो पार्टिकुलर से कंक्लूजन लेते हैं लास्ट में, तो 20-25 मिनट मान के चलो। चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मेहनत। मेहनत करोगे तो तुम्हारा थॉट्स बन जाएगा। प्रैक्टिस एक पार्ट है, मेहनत करना बहुत जरूरी है, राइट? सर उसमें जो एक लास्ट क्वेश्चन है, जो हम ग्रुप को स्कोर देते हैं, सो अगर फिर ग्रुप का स्कोर ज्यादा आ रहा है, सो उसमें से ऐसे चांसेस रहते हैं कि फिर उसमें से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट होंगे, या फिर कैसे है? ग्रुप का स्कोर कितना मैटर करता है, बाकी जो भी परसेंटेज है? देखो वो वही देखता है कि इस ग्रुप में काम के लोग कितने हैं, बस ये मैटर करता है। उसको लगा काम के लोग हैं, अच्छा डिस्कशन किया तो ज्यादा को दे देगा। बट इन ऐसे किसी को निकालता नहीं है कि ग्रुप गंदा था तो इसको भी निकाल दो अच्छे आदमी को, ऐसा नहीं करता हो। अगर उसको सही आदमी लाएगा तो उसको पकड़ लेगा, ठीक है? तो आपका अपना वर्थ है, अपना वर्थ इंक्रीज करो। देखो जब तक तुम्हारा लेवल नहीं आएगा तो तुम्हें वो नहीं लेगा, ये मान के चलो आप। और लेवल आएगा तुम्हारा मेहनत करके, मेहनत का सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है। ये जितना भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये एक प्रैक्टिस है, मेहनत का सब्स्टिट्यूट नहीं है ये। जैसे आप टेस्ट सीरीज जो लगाते हो ना, वो अपना नॉलेज को चेक करने के लिए लगाते हो, नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं होता। पढ़ना तो पड़ता ही है। वैसे जीटी में लेवल इंक्रीज करना है तो देखना तो पड़ेगा कि किसी का आंसर क्या होता है। जो ये डिस्कशन हम करते हैं एंड में, ये जरूरी होती है। तो आपको जीटी तो सुनने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि साहब आपने 10 जीटी मेरे साथ लगा लिए तो आपको लग रहा है कि नहीं अब आपका लेवल आ जाएगा, वैसा नहीं होता। पढ़ना तो पड़ता है, नॉलेज तो एक्वायर करना पड़ता है, मिला जुला इफेक्ट है ये जितना भी यूरोपीडिया का मॉड्यूल है आपका, इंटरव्यूज का, एचआरस का, ये टेस्टिंग है एक्चुअली। इसको मिसअंडरस्टैंड मत करना कि तुम्हारी तैयारी है ये मत सोचना कि टीचर तुम्हें टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसके लिए मैराथन वीडियोस हैं, उसके लिए स्नैप्स हैं। मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता हूँ, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ और ये बता सकता हूँ कि तुम्हारा लेवल कितना है। मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता। पढ़ाने के लिए हमने वीडियो बनाया, वो तुम्हें सुनने पड़ेंगे।
वैसे ही यहाँ पे प्रैक्टिस हो सकती है। मैं ये बता सकता हूँ कि ऐसे करो, ऐसे मत करो। लेकिन लेवल कैसे इंक्रीज होगा सर? ये जो आप आंसर दे रहे हो, ये आंसर मेरे को कैसे आएगा? ये तो सुन के, आपको मेहनत करके आएगा। उसके लिए 300 प्लस ग्रुप टास्क पड़े हुए हैं। हर ग्रुप टास्क तुम सुनोगे, उसमें से सीखोगे, तो तुम्हारा लेवल बढ़ता चला जाएगा। और इसमें ऑब्वियसली 300 तो नहीं सुन सकते, लेकिन 20-50 तो सुनो, राइट? ऐसा करो, तब तुम्हारा लेवल बढ़ेगा उससे। चलो, आई टेक लीव ऑफ यू नाउ। और इसका फीडबैक जो है इंडिविजुअल, वो मैं रिकॉर्ड करके आपको भेजूंगा। कल के भी मैंने अभी भेजे नहीं है, और आज के ये 2 दिन का है पाइलअप, मैं कल भेजता हूँ इसके सारे। ओके, थैंक यू सर।